Although my personal preference is to create a harmony and mutual interaction for these type of technical sessions. So I would like to request all of you to participate actively, and for active participation it is necessary to have an active listening. So let's start our today session. As I state that we will jointly continue this session. Instead of single stream, it would be two stream and interactive. So first of all, what is indoor air quality, or IAQ? It is, we can say, the hot debate of nowadays societies, but comes with another coin, the flip side of coin. What we can say, I will try to make it bilingual session. Would it be okay for all of us? Yes. Okay. So, what comes first in our mind when we say indoor air quality? IAQ. What comes first? Let's. I feel fresh. You feel fresh, and what others feels, or what we feels? Comfortable. Comfortable. Okay. And healthy. Indoor air quality means it should be healthy. So it is nowadays coin that indoor air quality can only maintain the healthy environments or healthy indoor environments. So whenever we say the indoor air quality, so alternatively or subsequently, it would result on better indoor air quality. So today we will try to understand the process of indoor air quality. What are those factors that contribute towards poor indoor air quality? So let's start. So before starting the concept, or start to understand the concept of indoor air quality, we need to understand the concept of air. What is air? So what is our perception about the air? Can anyone shed some light on indoor or air only? What we breathe in. What we breathe in. So what we breathe in, what is that? What we breathe? It's something gas. It is okay. And Mixture of gases. it is mixture of gases. Nice. And what else? Any other point of view? It's a carrying medium. It's a carrying medium. Yes, it has another property to carry something like heat or some dust, pollutant, smoke. Yes, and noxious smell as well. Carrying medium, you are right. But what is actually air? Okay. Uh, can I simplify the things? There are two modes of communication. One is complex. The presenter or the communicator use the jargons, the highly complex technical words to establish that he knows very well. And the other form of communication is to use simple words. And the good communicator is what I believe, and we should believe, that he or she must convey his or her message in a comfortable way, so everybody can understand easily, regardless of their degree, regardless of their technical knowledge, and regardless of their background. And it is very important or highly important that we, as a community, we should understand the properties or the composition of air. These are two different streams, and both contribute towards indoor air quality. And if the properties of air change or change the shape, so the indoor air quality would be poor or poor or Rich. Good. good or rich. So
let's try to understand that what is air. अच्छा, लॉन्ग वे बैक ये हम सब ने पढ़ा हुआ है, लॉन्ग वे बैक और एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इजीली व्हाट्स एयर. एयर है क्या? हम सब जानते हैं मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ एयर गैसेस. और बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर क्या है, चले वो भी आपको मालूम है, नाइट्रोजन. एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? 78 point something we can say conservatively. And what is the percentage of oxygen in air? 21%. Excellent. So we will focus the 21% right now, and then we will try to understand that what leads towards poor indoor air quality. So अब हम यहां तक तो समझ गए कि एयर क्या है. नंबर वन, composition of different gases, mixture of gases, what we can say, और biggest contributor कौन क्या है? नाइट्रोजन. एंड सेकेंड लार्जर कंट्रीब्यूटर कौन सा है? ऑक्सीजन. सो हम जो ब्रीथ करते हैं उसमें से जो यूजफुल पार्ट है, व्हाट वी कैन से द मोस्ट यूजफुल एंड वाइटल पार्ट इज ऑक्सीजन. व्हाट इज दैट? ऑक्सीजन. एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ी खूबसूरत एक सिनर्जी क्रिएट की है. ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी फिर भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है. इसीलिए जो डाइवर्स भी जाते हैं, डाइविंग करते हैं, उनको भी कंप्रेस्ड एयर दी जाती है. ये एक अलग फिनोमेना है, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो मेडिकल से रिलेटेड लोग जो है ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं. सो अब हम देखते हैं कि इंडोर एयर क्वालिटी है क्या. अच्छा, एक कॉमन ये बुनियादी तौर पर actually what this session is, generally I call this session as a myth buster session. So there are some myths and there are some truths, or generally we are used to myths, ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसे illusion जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते. मसलन एक illusion ये है कि एयर पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आउटडोर्स में होती है, ये illusion. ये क्या है? लेकिन एवरीबॉडी नोस कि जब हमें डिल्यूशन करनी पड़ती है, ये जिसको हम फ्रेश एयर कहते हैं, तो इसी से बाहर से हम एयर ड्रॉ करते हैं. और अच्छा, फिर या फिर ये कहते हैं हम कि इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हैं जो एयर पॉल्यूशन में. बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स. मैंने कोशिश की थी कि मैं एक एयर क्वालिटी मॉनिटर ले आऊं अपने साथ और यहाँ पे रख दूं ताकि वो, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टाइम में मुझे नहीं मिल सका. मतलब हम यहाँ बैठे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो परमिसिबल है कि इस एनवायरनमेंट में होना चाहिए, बट जनरली वो उसके लेवल्स एक्सीड करते हैं. और हमने जब उसका रियल टाइम डेटा मुख्तलिफ जगहों पे देखा तो हमें ये एहसास हुआ कि हमारे यहाँ इंडोर एयर क्वालिटी या इंडोर एयर पॉल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. व्हाट वी लर्न, ये एक डेटा ड्रिवन बात मैं आपको कर रहा हूँ. इसमें हर तरह के इन्वायरमेंट्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी से लेके वर्क स्टेशंस तक या वर्क प्लेसेस तक, दोनों जगह पर है. ऑडिटोरियम से लेके, बल्कि ऑडिटोरियम्स वगैरह जो हैं वो ज्यादा अनहेल्दी होते हैं एयर क्वालिटी के लिहाज से. आप अगर आपने एयर को समझना है, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द एयर और मिक्सचर ऑफ एयर, तो सर्दियां आती हैं तो हम सब बड़े मजे से सूप लेते हैं. तो सूप के जरिए से एयर को समझा जा सकता है. उसमें अगर आप मोस्टली, मेरा ख्याल में हमारे यहाँ 80% लोग जो हैं वो कॉर्न सूप पसंद करते हैं. वो चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सॉस, बाकियों की कुछ पॉपुलेशन है, बाकी फिर डिफरेंट. लेकिन सब में एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी कि आप कोई ना कोई स्पाइसेस ऐड करते हैं, उसमें होते हैं चिकन के पीसेस होते हैं, कॉर्न होता है, एग होता है. लाइकवाइज अब हर एक के अपने अपने फ्लेवर है और वो हर एक कोई कस्टम भी करता है उसको. तो एयर भी बिल्कुल ऐसे है. कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं कि जो नेचुरल हैं, जो उसमें एग्जिस्ट करती है. मसलन जिस तरह अभी बात हुई नाइट्रोजन, उसका एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है. सम अदर गैसेस
जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, जो फ्रैक्शन है वो उसका है, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑक्सीजन है। तो अब इस मिक्सचर के साथ ऐसा क्या होता है, इस सूप पे हम कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं कि जिसकी वजह से ये एक पुअर सूप बन जाता है या अनहेल्दी सूप बन जाता है। तो इसलिए सूप की एग्जांपल से इसको कोरिलेट करना, क्योंकि हम में से एवरीबॉडी नोज कि सूप है क्या, विजुअल्स जो IAQ के हवाले से हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं। मसलन EPA है, EPA जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज है, हमारे यहाँ तो अब एक्टिव हुई है, लेकिन USA की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA जो है ज़्यादा है, और डेफिनेटली वो एक बेंचमार्किंग उसने सेट कर दी है कि ये इसके बेंचमार्क्स हैं, और इन बेंचमार्क्स के लिहाज से अगर कोई चीज़ इस तरह की है तो इस एक क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पुअर इंडोर एयर क्वालिटी नहीं है या वो अनहेल्दी बिल्डिंग नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, तो मैं आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं कि अनहेल्दी एयर या सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, किसी ने सुना है इसके बारे में? सिंड्रोम से तो आप सब लोग की ये एक प्रॉब्लम होगा। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम है, जिसको पहले अनहेल्दी बिल्डिंग कहा जाता था, फिर वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में आया। लेकिन अब क्योंकि कैपिटलिस्ट अप्रोच ये है कि कैपिटलिस्ट अपने कॉइन्स पर अप्रोच चेंज करती रहती है, तो अब सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की बजाय उसको जो रिप्लेस कर रहा है वो हेल्दी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। और मेरा ख्याल में आप सब जो लोग एश्ट्रे मेंबर्स हैं वो जानते होंगे कि राइट नाउ दिस ईयर बिगनिंग फ्रॉम जून, जो 1 जुलाई इस साल का एश्ट्रे का प्रेसिडेंशियल थीम भी हेल्दी बिल्डिंग्स का या हेल्दियर बिल्डिंग्स का है। तो हम इसलिए थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे। तो IAQ जो EPA आइडेंटिफाई करता है वो कहता है कि ऐसी एयर का कंपोजिशन होता है या ऐसी इंडोर एयर होती है कि जिसके अंदर लेस इन्फेक्शियस या इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं पब्लिक हेल्थ को। और अभी हम देखते हैं कि इसके बाद ये रियलिटी जो हम देख रहे हैं, मतलब आप देखें कि आप में से कौन आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो एमिशंस का कॉन्सेप्ट है। हमें एमिशंस कोई चीज होते हैं, VOCs, फॉर्मेल्डिहाइड्स और लाइकवाइज। अच्छा, ये जो बिल्डिंग फिनिशेस हैं, ये क्या ये कोई एमिशन करती है? एक दफा हमने अप्लाई कर दिया तो ठीक हो गया? कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वुड वर्क हुआ हुआ है, वुड के ऊपर पॉलिश है, ये एमिशंस जनरेट करता है या नहीं करता है? अच्छा, सारा साल करता है, हर वक्त करता है, या एक खास टाइम तक करता है और उसके बाद नहीं करता? अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे बड़ा एक हम्बल सा इन्वायरमेंट है, कोई हाई फाई फिनिशेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप में से हर फर्द ने कोई एक कंट्रीब्यूटर आइडेंटिफाई करना है। ईच वन ऑफ अस, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूटर है जो इंडोर एयर क्वालिटी को पॉल्यूट कर रहा है या उसको पुअर साइड पे लेके जा रहा है या उसमें रिस्क ऐड कर रहा है। फॉल सीलिंग, ठीक है, नेचुरल मटेरियल नहीं है, एंड लाइट अप टू सम एक्सटेंट लेस, ये PVC मटेरियल, ओके। फैन की इंडक्शन मोटर ऐड कर लिया, लेकिन वो एयर से रिलेटेड नहीं है इंडक्शन डिवाइसेस ऐड करती हैं, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के, वो हमारी बॉडी के लिए तो इंजोरियस है, ब्रेन के लिए। AC करता है अगर उसका कॉइल साफ ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ पॉइंट आउट करें, हमने मटेरियल को पॉइंट आउट, जनरलाइज नहीं करना है। उससे ये होगा कि आप जब भी आइंदा बैठेंगे, कोई बात होगी, तो आप इस कॉन्सेप्ट को फैलाएं आगे, क्योंकि इस पे बहुत कम बात होती है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत कम समझा जाता है। ये HVAC में वो मजलूम तरीन टॉपिक है जिसको आज तक समझा नहीं गया, जिसपे हम बात नहीं करते, जिसको चीजों को एग्जाम्पलीफाई नहीं किया जाता। छोटी छोटी, मतलब ये टेबल पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये आपके पास केबल पड़ी है, ये लैपटॉप के मटेरियल्स हैं, ठीक है। हमारी ह्यूमन एज ए ह्यूमन अपनी स्किन है, ये डेड हो रही है और मुसलसल इससे हमारे जहां पे हम बैठे हैं हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के हम वेपर्स, एमिशंस इस एनवायरनमेंट में ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए, जरा सोचिए, अब अपने अपने आप
विजुअलाइजेशन स्किल को या इमेजिनेशन स्किल को देखिए कि आपके पास एक ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, कहीं से आ रही है इस वक्त ऑक्सीजन, एयर आ रही है, चलें ऑक्सीजन छोड़ दें। अच्छा, एक और बड़ी मिथ है, मैं अपने स्लाइड से बिल्कुल हट रहा हूँ क्योंकि वो डिफरेंट, क्योंकि आप विजुअलाइज कर सकते थे, क्योंकि हमने इसको उसके बगैर समझना है। अच्छा, ये सोचिए मस्जिद में जाते हैं तो आजकल बिलखुसूस बरसात में कुछ स्मेल आती है, क्यों आती है? कारपेट खुद से तो नहीं है, कारपेट आपके घर में भी होता है, वो कारपेट स्मेल क्यों नहीं करता? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, अमूमन कहा जाता है कि कूलिंग ज़ाया होगी अगर हम फ्रेश एयर लेके आएंगे, ठीक है कॉन्सेप्ट? बाहर से अंदर, हाँ हाँ, अच्छा, तो क्या हमें एयर कंडीशन स्पेसेस जितनी भी होती हैं उनको एयर टाइट रखना चाहिए या कंट्रोल्ड एयर टाइट होना चाहिए? दो अलग अलग, कंट्रोल्ड एयर टाइट, यानी कि इट शुड बी एयर टाइट, इट शुड बी, तो कंट्रोल्ड क्वांटम ऑफ एयर जो है हमें उससे देना। अच्छा, ये कैसे डिफाइन होगा? जाएंगे, ग्रेजुअल जाएंगे। अच्छा, क्या करेंगे आप अपने लोकल विजडम, अभी तक का जो विजडम है सिर्फ उसको यूटिलाइज करें, छोड़ दें, एक लम्हे के लिए छोड़ दें कि आप इंजीनियर हैं, एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना? क्योंकि जब हम अपना वो एक बेसलाइन छोड़ेंगे ना, तो फिर हम एक ब्रॉडर ऐसे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ले सकेंगे, उसको की अंडरस्टैंडिंग को, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकेंगे कि जिसको उस डेप्थ के साथ होना चाहिए। आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आपकी पर्सनल वेलबींग भी बेहतर होगी, इस कॉन्सेप्ट को, आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी, आपके सोचने का प्रोसेस वो भी इंप्रूव करेगा, कॉग्निशन जिसको कहते हैं। अभी मैं इस पे नहीं आ रहा कि कॉग्निटिव प्रोसेस जो है ह्यूमन ब्रेन को सोचने के लिए, जो ऑक्सीजन लेवल्स अभी हम बात करेंगे उस पर कम होते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, हम उस पर बात नहीं करेंगे उसको सिर्फ। अच्छा, ये जरा सोचिए कि ये जो अभी आपने इमेजिन करना है कि यहाँ पर कहीं से एयर नहीं आ रही है, जनरली 80% से ज्यादा ऐसे ही होता है, ऑफिस में ऐसे ही हो रहा है। हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेश एयर बंद होती है बंद, ऐसे ही है। हम ऑफिस में बैठते हैं तो जनरली फ्रेश एयर नहीं होती, ऐसे ही है। कोई वेल डिजाइन और वेल मेंटेन्ड, मैं दो लफ्ज यूज करूंगा जो कि ये इंटरलिंक्ड है। अगर वो वेल डिजाइन है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन वेल मेंटेन्ड नहीं है, वो उसके फ्रेश एयर के या आउटडोर के टेम्पर ही बंद कर दिए हैं कमीशनिंग के बाद, तो जनरली क्या फ्रेश एयर आती है। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको इसको मोटा सा साइज देता हूँ, ये 20 बाय, अगर आप कहें कि 20 का रूम है तो कितने क्यूबिक फुट एयर है यहाँ पर? मेंटल मैथ, 400 नहीं, 400 तो उसका एरिया बन जाएगा ना वॉल्यूम क्यूबिक फीट में। 10 फीट अगर एज्यूम करें तो ठीक है, 4000 क्यूबिक फीट ऑफ एयर है। हम ह्यूमंस बैठे हैं यहाँ पर और हम कितनी एयर जो है कंज्यूम करते हैं पर मिनट फॉर ब्रीदिंग पर्पस? फॉर ब्रीदिंग पर्पस एक सिंगल ह्यूमन कितनी एयर कंज्यूम कर रहा है जिंदा रहने के लिए? चले आसान भाषा में बात कर लेते हैं, जिंदा रहने के लिए कितनी हवा चाहिए एक बंदे को? पर बैठे हुए साइंटिफिक स्टडी ये रिवील करती है कि एक ह्यूमन जो है वो किसी जगह जब बैठा होता है तो वो मिनिमम 5 क्यूबिक फुट एयर जो है, 5 क्यूबिक फीट ऑफ एयर, 5 CFM जो है वो उसको चाहिए फॉर ब्रीदिंग पर पर्सन, पर मिनट, CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, CFM। तो अच्छा, अब 5 CFM है फॉर ब्रीदिंग ओनली, वेयर एज रिसर्चेस ये कहती हैं कि आप यू शुड कंसीडर द फर्निशेस अभी हम बात कर रहे थे, अब तो आपको सबको समझ आ जाएगी ना। मतलब किसी जगह पे है ही सारा सिंथेटिक मटेरियल, नीचे कारपेट भी सिंथेटिक है, ये तो नेचुरल स्टोन है,
आपकी दीवारें भी आजकल आपको पता है वो सामने ये सिंथेटिक है, तो आप इतनी एमिशंस ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर गाइडलाइन ये कहती है कि आप कैलकुलेट करेंगे पहले कितनी एमिशंस जनरेट हो रही है, तो उन एमिशंस को के रिमूवल के लिए फिर आप कैलकुलेशंस करेंगे, उतनी एयर देंगे। अदरवाइज एक्सटेंडेड इन्वायरमेंट है तो फिर उन्होंने कहा है कि आप जो है 0.2 CFM पर स्क्वायर फुट देंगे, पर स्क्वायर फुट। दैट इज फॉर डिल्यूशन, टू रिमूव द एमिशंस, जो यहाँ पे एमिशंस आ रही हैं, या VOCs हैं, फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं, इस तरह की चीजें। अच्छा, एक्चुअली स्टैंडर्ड 62.1 ये कहता है, मैंडेटरी है कि आपने दोनों को कंप्लाई करना है। एक तो आप ह्यूमंस को भी कैलकुलेट करेंगे और दूसरा आप एरिया को देंगे, और दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को अलग अलग एड पैटर्स करेंगे। अच्छा, ये जो है ये मिनिमम है रिक्वायरमेंट, लेकिन अब अगर आपकी एक्टिविटी चेंज है, मसलन कोई बंदा चल फिर रहा है ऑफिस से इधर से ला के दूसरा दे, तो एक्टिविटी डिपेंडेंट होती है। फिर मसलन ये 7 CFM भी चाहिए होंगे, 8 भी चाहिए होंगे। ये तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हम वॉक कर रहे हों, हम थोड़ा सा तेज वॉक करें तो ज़्यादा सांस, तो ब्रीदिंग थोड़ी एग्जैक्टली वो चेंज हो जाता है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस की एक और वजह यह है कि जो रिसर्चेस है या डेटा वो ये शो करता है कि एक ह्यूमन पर्टिकुलरली पर डे जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 kg ऑफ फूड जो है वो कंज्यूम करता है। कितना है? 1 kg। अच्छा, ये तो पानी का तो आपको आइडिया होगा, पानी का हमें आइडिया है कितना हम कंज्यूम करते हैं, या कितना कंज्यूम एक मैक्सिमम हो जाता है, कितना है आइडिया है? नहीं, पर पर्सन 8 to 10 वाले तो लोग ही नहीं है यहाँ पे, नहीं। जनरली रिसर्चेस अगर, क्योंकि वो राउंडेड ऑफ कर लेती है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 लीटर भी तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब वो डेटा होता है तो आपने उसको फिर एक शीट करना होता है, तो 2 kg या 2 लीटर पानी का वेट तो आपको पता स्टैंडर्ड है, पर लीटर जो है उसका वो 1 kg है। अच्छा, अब एस्टिमेट कीजिएगा कि हम एयर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं पर डे, ये सारी पर डे की बात हो रही है। अपने अपने जहन में एक फिगर या एक वैल्यू लॉक कर ले। कर लिया आपने सबने लॉक? अब आप देखिएगा कि क्या आपकी वैल्यू, वो जो रिसर्च वैल्यू है, उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही। एक ह्यूमन बीइंग 24 kg पर डे कंज्यूम करता है। कितना? तो क्या इंडोर एयर क्वालिटी क्रिटिकल है या नहीं? और इसको दुनिया ने विटनेस किया कोविड-19 में। ऐसे ही है, वहां पर एक ही हल सामने नजर आया कि कुछ नहीं भी कर रहे तो एयर को सिर्फ एग्जॉस्ट कर दें। दैट्स वाई बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, लेकिन ये ईमानतन मैं मुंतकिल कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे हो, हॉस्पिटल की आप डिजाइन के अलावा या इम्प्लीमेंटेशन में हो या कुछ भी हो, तो हॉस्पिटल में OPD सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया होता है। क्यों? कोई बताएगा? लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि OPD एक ऐसी जगह है कि जहां पे अभी डिजीज डिफाइन ही नहीं हुई, जहां पे अभी डायग्नोस्टिक हुआ ही नहीं। एक फर्द है, वो वहां बैठा है, उसको कंटेजियस है, और दूसरा नॉन कंटेजियस वाला भी वही है। कंटेजियस और नॉन कंटेजियस का कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर है ना। ऐसी डिजीज कंटेजियस मीन कि वो डिजीज जो एयरबॉर्न है, अच्छा, मेरे पास वो स्लाइड थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रही, लेकिन आप लोग गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो हमारे नजदीक हमारी बॉडी में सबसे छोटा पार्टिकल हमें नजर आता है, जो विजिबल है, वो हमारा बाल है, हेयर है। तो ह्यूमन हेयर से कोरिलेट किया गया है। तो ह्यूमन हेयर से अगर कोरिलेट करते हुए देखें तो जो पोलन्स होते हैं वो इससे छोटे होते हैं, पोलन्स। और फिर पोलन से भी छोटे होते हैं पार्टिकुलर मैटर, जिनको PM कहते हैं। तो कोविड के दौरान ये बात PM, और आपने वो N90 मास्क का तो सुना ही होगा कि जो, ठीक है ना, N90 और N95 ये 2 मास्क उन दिनों बड़े हिट हुए थे, जिनमें वेल्व लगा होता था ब्रीदिंग के लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वहां पे डिजीज अभी डायग्नोस्टिक नहीं हुई, पेशेंट जो है उसको कंटेजियस डिजीज है या नॉन कंटेजियस डिजीज है, एयरबॉर्न है या एयरबॉर्न
नहीं है, अभी ये डिफाइन नहीं हुआ, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब मैं इसको सिंपल वहीं के वर्ड्स में, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुआ, डायग्नोसिस ही नहीं कंप्लीट हुआ, इसलिए कोड्स और स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जो ओपीडीज हैं जितने भी, उनकी एयर को, तमाम की तमाम एयर को एग्जॉस्ट होना चाहिए। आप उसे एयर कंडीशन करें या ना करें, लेकिन उसको एग्जॉस्ट करें। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कि जनरली अप्लाई नहीं होता, मसलन ऐशे या इस तरह की चीज़ें। अब ये जो क्वाइल है, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं और अर्शद शेख साहब, हम कहते हैं, उनकी बड़ी अच्छी खूबी थी जो अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है और जो हमें आगे कर, वो बहुत कम्प्लेक्स आइडिया को बड़े आसान जुबान में, आसान भाषा में समझा देते थे। नतीजतन ये होता था कि कम्युनिकेशन, मेरे एक मेंटोर हैं, वो बड़ी खूबसूरत कहते हैं इबलाग की, कम्युनिकेशन की खूबी ये हो कि वो इंतहाई आसान जुबान में हो, उससे आसान जुबान में वो समझाया ना जा सके, डिलीवर ना हो सके, और जब कोई इसको कॉपी करने लगे कि ये तो है ही बड़ी आसान सी बात है, आम सी बात है, तो उससे कॉपी ना हो। तो वो लोग जो कहते हैं इबलाग से वाबस्ता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि गुफ्तगू में ना हम मुश्किल अल्फाज तो आसान इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, क्योंकि हम टेक्निकल वर्ड्स हैं, अगर हम आसान करके पेश करें तो उसको समझाना भी आसान हो जाता है और बात जो है ज़्यादा पहुंच जाती है। तो इसी तरह हम वहाँ पर एमएस थे हॉस्पिटल के, उन्होंने बड़ी बात की थी कि हमारे ऑपरेटिंग रूम्स जो हैं, मेयो हॉस्पिटल, चले मैं जिक्र कर देता हूँ, तो शेख साहब ने उनसे कहा कि आप का जो एसी आपने लगाए हुए हैं, विंडो एसी लगे हुए थे, इससे बेहतर है कि ऑपरेटिंग रूम में एसी ना हो। वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या बात आपने कर दी, एसी लगा हुआ है। तो उन्होंने, शेख साहब ने साथ गए, कहते आइए किसी को साथ लेके देख, अभी इसको देख लेते हैं। उन्होंने इसके कॉइल की ग्रिल ओपन करवाई, और जो कॉइल के ऊपर आप देखते हैं, आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एसी का कॉइल तो देखा होगा, देखा है जी? 1 या 2 माह ही चलने के बाद उस कॉइल के ऊपर एक मड सी आ जाती है, ब्लैक कलर की आती है या नहीं, डार्क ग्रे या ब्लैक कलर की मड आती है ना। तो उन्होंने कहा कि इसको, ये है ना मड, ये एक्चुअली जर्म्स की कॉलोनी, ये माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ है, माइक्रोब्स की ग्रोथ का ये गार्ड है, कॉलोनी कहते हैं उसको। और वहां से उन्होंने उनकी तसल्ली के लिए, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए उसका सैंपल निकलवाया, उसको लैब करवाया। वो प्रोसेस होने के बाद ये बात साबित हुई कि ये ऐसे ही है। तो इंडोर एयर क्वालिटी, अगेन, ये एक ऐसा मौजू है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। ये एक ऐसा एरिया है, इवन अगर हम देखें कि हम एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन, हम सब लोग एयर कंडीशनिंग से ओरिएंटेड लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो एयर कंडीशनिंग को बड़ा अच्छा समझते हैं, और फॉर्चुनेटली सारे ही लोग ऐसे बैठे हैं इस वक्त मेरे सामने जिनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिगनर लेवल पे हो, बल्कि शायद इंटरमीडिएट लेवल पे भी नहीं है कोई लोग। आप सब लोग वो हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। आप सब लोगों ने अपनी अपनी डोमेन्स के अंदर कोई ना कोई आपकी अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट्स हैं, आप अपने कैरियर पाथ में बड़े आगे जा चुके हैं। लेकिन हम अभी देखेंगे सिर्फ आपस में गुफ्तगू में ही, डिस्कशन में, कि एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन है क्या। पता सबको है, वो 4 कंपोनेंट्स हैं जो एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन है। पहला क्या है, चलें हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं जो पहला समझा ही पहला जाता है, टेम्परेचर। ठीक है जी, कंफर्टेबल या टेम्परेचर। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है हो गया, और जी शाबाश, डायरेक्शन ऑफ एयर एंड क्लीनलीनेस हो गया। ये तो आपको इसकी डेफिनेशन में इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन करने में कहते हुए जो एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन है, जो इसमें हमने सबसे पहले क्या जिक्र किया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कंट्रोल करेंगे। हम किसको करेंगे? टेम्परेचर ऑफ एयर को, ठीक है। समर में हम उसको टेम्परेचर को डाउन करेंगे, कंफर्टेबल लेवल पे लेके आएंगे। विंटर है तो हीट उसमें ऐड करेंगे। और हम क्या करेंगे? क्लीनलीनेस ऑफ एयर या फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एयर या मूवमेंट ऑफ एयर को साथ में कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन ऑफ एयर का, इसका आल्दो इंडोर एयर क्वालिटी से लिंक है भी और नहीं भी है। इस तरह
कि आप डाइनिंग एरिया में बैठे हुए हैं और किचन से आपको अगर नॉक्शियस खाने की मुख्तलिफ किस्म की मिक्स स्मेल आ रही हैं, तो क्या आपके लिए बैठना कंफर्टेबल होगा? अभी मैं आपको प्लीजेंट एनवायरनमेंट की एग्जांपल दी है, खाने की खुशबू तो अच्छी होती है ना, लेकिन एक मिक्स आ रही होगी। तो इसीलिए डाइनिंग एरिया से डायरेक्शन ऑफ एयर का फ्लो ये होता है कि डाइनिंग से आपका किचन की तरफ एयर जाए, यानी कि डाइनिंग एरिया एज कंपेयर टू आपके किचन जहां पर फूड प्रोसेसिंग हो रही है उससे पॉजिटिवली प्रेशराइज होगा, और किचन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इससे जो एयर जारी होगी ये डायरेक्शन ऑफ एयर करेगा, हम इसे एयर की फ्लो की डायरेक्शन। और इसी के साथ साथ दूसरा है, आप में से किसी ने एशरे का कंफर्ट जोन देखा है? कंफर्ट जोन साइक्रोमेट्रिक चार्ट, तो आप देखिएगा कंफर्ट जोन में जहां पर टेम्परेचर ऑफ द एयर है, मतलब उसमें आप देखेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द एयर 29 पे भी कंफर्ट जोन है, लेकिन साथ वो कैप होता है वहां पर कि उस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी हो। लेकिन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट अटैच है जो एशरे स्टैंडर्ड 55 कवर करता है, जो आपको ये बताता है कि मूवमेंट ऑफ द एयर भी उसके साथ लाजिम है, कि एयर की मूवमेंट, एयर की अगर आपकी वेलोसिटी ये होगी तो आप फिर उसे एक कंफर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सवालात भी जनरेट हो रहे होंगे, तो सवालात अगर हम पार्क कर लें, अब ये स्लाइड्स खत्म होने वाली है, तो हम ये करेंगे कि आखिर में क्वेश्चन आंसर और ये वन वन डिस्कशन का सेशन स्टार्ट कर लेंगे इसको। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के बारे में मोटी सी बात, आसान करने वाली बात यह है कि ऐसी बिल्डिंग, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी एक कन्फाइंड इन्वायरमेंट, इंडोर इन्वायरमेंट, कि जिसमें बैठने वाले लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स, डिफरेंट किस्म की कॉग्निटिव प्रॉब्लम या एडवर्स हेल्थ इफेक्ट में, मतलब किसी को छींकें आ रही हैं, कोई डिजीनेस फील कर रहा है, कोई देखता है कि मैं ऊँग आनी शुरू हो जाती है, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता, या काम करने में, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस ना उनका और हो रहा हो, क्लिनिकली वो अपीयर ना हो रही हो, क्योंकि वो उस खास बिल्डिंग में जाके आ रही है। और मोर देन 20% ऑक्यूपेंट, कितना है? मोर देन 20% ऑक्यूपेंट इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ऐसी बिल्डिंग के साथ वो जो फिनोमेना होगा, ये बिल्डिंग नहीं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। वो क्या होगा? मैं समझा सका अपनी बात? आपने 20% याद रख लेना है, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स याद रख लेने हैं, और ऐसे हेल्थ इफेक्ट्स जो है कि उनका कोई क्लिनिकली डायग्नोसिस ना हो रहा हो। तो ये ऐसी बिल्डिंग या ऐसा इन्वायरमेंट जो है वहां पर। अच्छा, ये बिल्डिंग की कंडीशन है, इसके बारे में याद रख लीजिएगा कि ऑक्यूपेंट्स की नहीं है, ऑक्यूपेंट सिक नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें तमाम तर मामला जो होता है वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, मतलब आप 6 घंटे के लिए बैठे हैं, 8 घंटे के लिए वहां बैठे हैं, और फिर वहां पर लो एक्सपोजर ऑफ कंटेमिनेंट्स है, जो कंटेमिनेंट्स मौजूद हैं लेकिन बहुत उनकी क्वांटिटी कम है, तो इसके लिए आपको उसके साथ लो एक्सपोजर से आ रहा है। अब ये आती कहाँ से, ये हमने आगाज में डिस्कस कर लिया कि यहाँ हम बैठे हैं, ये आपकी चेयर्स की जो बैक है ये फिनिशेस हैं, ये पीवीसी का बोर्ड लगा हुआ है, ये पीवीसी मटेरियल है, ये सीलिंग आपकी इस तरह की है, हर चीज़ ही जनरेट कर रही है। तो जब ये जनरेट कर रही होती है तो इसके लिए सबसे पहले इसका कंट्रोल भी एट सोर्स होगा। कोशिश ये करें कि इसकी जनरेशन रोकें, ऐसे मटेरियल यूज़ करें कि जिनकी लो एमिशंस हों। अगर आप देखते हैं कि किसी जगह पे, और भी आपने इसकी आसान एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, नया कारपेट आया हो तो बैठा जाता है वहाँ पे, मुश्किल हो जाता है ना। पिंजेंट इतनी स्मेल होती है कि आपकी आंखों से, कुछ लोगों को होता होगा, पानी निकलना शुरू हो जाता है, कि वो इतनी ज़्यादा नॉक्शियस स्मेल होती है। और इस हवाले से हमें कॉन्शियस इसलिए भी होना चाहिए कि ये हमारे सिर्फ कॉग्निशन प्रोसेस को ही डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि इसके बहुत सारे एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट हैं। आप अगर इसको स्टडी करेंगे, तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इस तरह के वीओसीज या फॉर्मेल्डिहाइड्स का जब एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उसमें कितना ज़रूरी होता है कि आप उस स्पेस को कुछ अर्सा के लिए पर्जिंग करते हैं। इसीलिए नाइट पर्जिंग का एक वर्ड भी यूज़ होता है कि आप ऐसी स्पेसिस हैं कि रात को कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन सुबह आने से पहले बिल्डिंग में नाइट पर्जिंग कर दें आप, और उससे आपका एक तो लोड भी, जो हीट कम्युलेट हुई है वो निकल जाएगा, दूसरा आपका इन्वायरमेंट बहुत बेहतर हो जाएगा। आप एडुकेट वेंटिलेशन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है, लेकिन सोर्स कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। आप वेंटिलेशन की क्वांटिटी बढ़ा भी देंगे, सोर्स कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये वो वाला मामला है कि ना, वो
असल में जो सोर्स है किसी भी शक्ल में, ये इन्वायरमेंट की भी टर्म यही है कि इन्वायरमेंट में अगर हम सस्टेनेबिलिटी में कोई काम करना चाह रहे हैं तो पॉल्यूशन में भी एट सोर्स सबसे पहले कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहले हम सोर्स को कंट्रोल करेंगे। मतलब अगर आपका कॉइल ही जो है वो इतना डर्टी है कि वो वहां पे माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ वहां पे हो चुकी है और उससे जब एयर उससे टकरा के आएगी ना, ऐसे ही होगा ना, फिन से आप देखें कितना उसका कांटेक्ट बनता है। आप तो जानते हैं कि कितना फिन्स का एक क्वांटम होता है। जनरली अगर एच उसके कॉइल ले तो 6 रोज से कम तो कोई कॉइल नहीं होता, ज्यादा ही होते हैं। तो 6 रोज में भी अच्छा खासा एक उससे, अब वो एयर उसके साथ जो भी वहां पर है तो वो उसे ट्रेवल करेंगे। दैट्स वाई जो यूवी है, अल्ट्रावायलेट जर्मिनेशन जो है वो बड़ी पॉपुलर है कि वो उसके ऊपर मोल्ड और डिफरेंट जो जर्म्स की ग्रोथ है वो उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ये हमने देख लिया था कि वीओसी फिनिशेस का भी हमने। अब आपने अपनी जगह पर आज से आपका ये है कि कुछ टाइम के लिए आप सिर्फ इतना ऑब्जर्व करें, जहां बैठे हैं वहां पे देखें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। इसमें कंट्रोल हम ऐसे कर सकते हैं कि हम नेचुरल चीजों पे जाएं। मसलन अगर आप जिसमें आप कारपेट्स की बात कर रहे हैं तो दुनिया में इसीलिए कारपेट्स को जो है वो ऑब्सोलीट किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को। लोग नेचुरल स्टोन्स की तरफ या इस तरह की कोई फिनिशेस की तरफ जो है वो ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह सिंथेटिक एक और चेंज ग्लोबली आया, इसी से रिलेटेड है लेकिन बहरहाल थोड़ा सा रिलेटेड है भी या नहीं, जहां पर ये वीओसीज वगैरह या फॉर्मेल्डिहाइड्स एमिशंस इंडोर इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, वहां पे एक और हमारे लिए सेफ्टी हैजर्ड भी है। मैंने को कहा कि उससे आल्दो रिलेटेड नहीं है, वो ये है कि पहले जो मटेरियल्स होते थे उनकी फायर रिटार्डेंट कैपेसिटी ज्यादा होती थी। अब आप देखें, आप ये जितने भी मटेरियल लगा रहे हैं एक्चुअली आप ये मोस्टली कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं जो कि स्मोक को जनरेट करेंगे। पैनल्स, ये सारी चीजें ये यहाँ पे, और दुनिया भर के अंदर कैजुअलिटीज जो हैं, अगर वो अब इससे रिलेटेड बात करें तो वो फायर से कम हुई हैं और दम घुटने से, सफोकेशन से ज्यादा। इतना क्रिटिकल है एयर की क्वालिटी कि आप उसको अगर इनहेल कर लेते हैं। मैं पिछले दिनों एक सेशन में था तो मुझे यहाँ पे पता चला कि जितने भी दुनिया भर में फायर फाइटर्स होते हैं उनका जो एक लाइफ स्पैन होता है वो एज कंपेयर टू जो दूसरे ह्यूमन बींग है वो कम होता है, और उनमें रेस्पिरेटरी डिजीजेज ज़्यादा होती हैं। और हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज से एक और चीज़ मैं इंटरलिंक करता चलूँ कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑफ द बिल्डिंग जो है एक्चुअली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बिल्डिंग होता है। तो हमें इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन फिनिशेस वगैरह भी करें, अल्टरनेट फिनिशेस पे जाएं, या अपने जिस भी तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब छोटी सी एग्जांपल मैं यहीं से दूंगा। अभी ये आपकी जो बैग है ये सिंथेटिक मटेरियल की है, पीछे कुछ चेयर्स नज़र आ रही हैं उनकी नेचुरल क्लॉथ की है। अगर हम इस तरह के फिनिशेस को अडॉप्ट करते जाएं और अपनी अल्टरनेट मटेरियल्स के ऊपर जाते हैं, जैसा ग्लास है ये बड़ा अच्छा है, अगर एक पार्टीशन आपकी यूज़ कर रहे हैं आप श्रेडेबल मटेरियल की, तो आप वहाँ पे कुछ एरिया में के अंदर ग्लास पार्टीशन अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ग्लास एक नेचुरल मटेरियल है। तो इस तरह के सब्सटीट्यूट पे हमें आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ेगा और वो ज़रूरी है नेचर। अब एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या हैं, अगर अगेन बार बार प्रोजेक्टर याद आता है क्योंकि उसकी आदत हो गई है। तो असल में डिसीजन मेकिंग या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, या आप जो कंफ्यूज होते हैं ना, डिसीजन नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसको कहते हैं अनडिसेसिव होना समटाइम। लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो ही आप थोड़ा सा बाहर गए हैं, निकले हैं, तो आप एक बड़ा अच्छा फील करते हैं और फौरन बात आपको समझ में आ जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि जहाँ पर इंडोर एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं हो, आप जल्दी थक रहे होते हैं, फटीक जिसको आप कहते हैं, समटाइम फ्लू और एस्थमा, बल्कि बहुत सारी जगहों पर एस्थमा इंडोर एयर क्वालिटी की वजह से जो एयर कंडीशन बिल्डिंग है वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। लंग इन्फेक्शन तक ये बात चली जाती है। अच्छा, फिर लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। मसलन अगर आप 17%, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, 2 साल हो चुके हैं गलबन, बाड़िया में मरी के करीब, जब स्नो स्टॉर्म आया था। तो वो जो सारी कैजुअलिटीज थी वो किसकी बेस पे हुई थी, याद है? हाँ, वो हीटर्स को तो असल में क्योंकि जो एक नॉन टेक्निकल है वो तो उसको हीटर से रिलेट करेगा, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, गाड़ियां तमाम की तमाम वहां पे चल रही थी और उस पूरे एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक बहुत छोटे से फुटप्रिंट के अंदर स्मोक बहुत ज्यादा, एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो डिप्लीशन ऑफ एयर एक फिनोमिना है, जानते हैं, किसी ने नाम सुना है डिप्लीशन ऑफ एयर?
क्या होता है एयर डिप्लीशन? कॉन्फ़िगरेशन खराब हो गई है ऑक्सीजन की और गैसेस की। डिप्लीशन इटसेल्फ क्या मुराद है? व्हाट डज इट मींस बाय डिप्लीशन? ऑक्सीजन खत्म होती जाती है प्रोपोर्शन। मतलब लेट से कोई फर्द आपको कहता है, ये मैं अक्सर रिलेट करता हूँ, जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट आता है, तो अक्सर मैन्युफैक्चरर ये कहते हैं कि हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। लेकिन क्या 70% से ज्यादा परसेंटेज वाली नाइट्रोजन जो है वो टॉक्सिक है? मोर देन 70% है ना, तो क्या ये टॉक्सिक है? ज्यादा हो जाएगी नहीं, टॉक्सिक तो नहीं है ना, टॉक्सिक नहीं है। डिप्लीट होगी तो फिर होगा। अब डिप्लीशन क्या है? मतलब हम यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, 21% है। एक स्टेज आएगी, क्योंकि आ नहीं रही ना कहीं से ऑक्सीजन अब, तो ये 20% पे जाएगा। 20 के बाद क्या परसेंटेज आएगी? 19%। 19 के बाद किस पे जाएगा ये? 18 के बाद 17। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि कौन सी ऐसी परसेंटेज है इसकी ऑक्सीजन लेवल की जिस पे जाके ये लीथल हो जाता है? एक ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता। नहीं, तो आपने 6 तो बहुत नीचे ले गए, आपने ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी तो बहुत बढ़ा दी। अच्छा, तो ये एक्चुअली जब किसी इस एनवायरनमेंट में चलें, अब एक वर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे साथ हुआ एक प्रोजेक्ट पे, यहाँ पर कोई एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है, चलें ये लेट्स से ये अलमारी लगी है, लेकिन इसके पीछे ऑक्सीजन बैंक, वो जो गैस का बैंक है वो बड़ा है, पार्ट ऑफ वीआरएफ सिस्टम हम कह रहे हैं, और ये लीक कर गया इसका हेड। अब हम यहाँ बैठे हैं, क्या होगा? विजुअलाइज कीजिए, अपनी इमेजिनेशन, ख्यालात के घोड़े दौड़ाइए, क्या होगा? एयर की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, मीन ऑक्सीजन डिप्लीशन होगी। अब ये डिप्लीट हो रही, खत्म हो रही है यहाँ से ऑक्सीजन का लेवल। तो क्या अगर वो एक सर्टन वैल्यू, वो मैं जानबूझ के क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, वो आपके 1 मिनट का काम है, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने उसको देखना है कि वो क्या वैल्यू है। मेरे सामने आ रही है वो वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन कुछ हम थोड़ा सा अपने लिए लर्न करें कि क्या होगा जब वो सर्टन वैल्यू पे जाएगी, तो उस इन्वायरमेंट में बैठे हुए तमाम तर लोग जो हैं उनके वो सरवाइव नहीं कर सकते। इतना इम्पॉर्टेंट है इंडोर एयर क्वालिटी, इसको मेंटेन करना। इसमें चाहे आपके किसी जगह बैठने से सर दर्द हो रहा हो, आपको डिजीनेस आ रही हो, खासकर समटाइम कुछ लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं उनको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। हमने जिस तरह डिस्कस किया कि इसकी किन ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इंडोर एयर क्वालिटी को बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हमने कहा कि हम सोर्स को कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स को कंट्रोल करेंगे, देन हम उसको एडिक्वेट वेंटिलेशन जो भी उसके लिहाज से है हम इसको कंक्लूड करते हैं, वो प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने क्या एक बात की थी, अच्छा सबने मिलके भी फिल्टर्स पे बात हुई कि क्लीनलीनेस ऑफ एयर जो है उसको हम मेंटेन करेंगे। ये 4 प्रॉन्च अप्रोच हम इसको कहते हैं। और अगर उसके साथ चौथी चीज़ जो है वो हम ऐड करेंगे, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी हम मेंटेन करेंगे। क्योंकि अगर इसके बाद इसकी स्टेजेस क्या हैं, आखिरी बात जो हम करने जा रहे हैं, और वो स्टेजेस इसकी ये हैं कि सबसे पहले तो ये एड्रेस होगा डिज़ाइन स्टेज के ऊपर। सबसे पहले ये कहाँ पे एड्रेस हो, आप सब जानते हैं सीक्वेंस को। डिज़ाइन के बाद क्या उसकी बारी आएगी? एग्जीक्यूशन। इंस्टॉलेशंस के ऊपर होगा कि इंस्टॉलेशन जो है वो डिज़ाइन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होगा हमारे यहाँ? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, या परफॉर्मेंस मेंटेनेंस भी आजकल ऑपरेशंस भी कहा जाता है, उसमें इसको किया जाएगा। ये एटलीस्ट 3 स्टेजेस हैं। ये एटलीस्ट कमिश्निंग तो हम मैंने उसको एग्जीक्यूशन का पार्ट कर दिया। एक्चुअली अगर कमिश्निंग को सही तरह समझा, मेरा ख्याल में आप फारूक साहब इस पर बात कीजिएगा। जनरली कमिश्निंग भी एक ऐसा मौजू है कि जिसको सिर्फ रिलेट कर दिया जाता है ये कहें कि स्टार्टअप के साथ। नहीं, स्टार्टअप भी थोड़ी सी लोगों को चले समझ आ गई है। स्टार्टअप के बाद वो जो बस थोड़ी सी फाइन ट्यून करके बस वो कहते हैं ये कमिश्निंग है, लेकिन एक्चुअली कमिश्निंग जो है वो बेक्सर भी यहाँ मौजूद है और इन चीज़ों को फेस करते हैं कि
ये स्टार्ट हो जाता है इंसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, कमीशनिंग प्रोसेस, जिसको एस्ट्रे डिफाइन करता है। एस्ट्रे की जीरो जो गाइडलाइन है, इनके पहले से भी बेसिक गाइडलाइन है, वो कमीशनिंग पे है। तो ये वहां से स्टार्ट होता है और ये मेक श्योर करता है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ओपीआर, ऑनर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, वो इंटेंट मीट कर रहा है डिजाइन में, वहां पे भी वो देखता है। वो फिर देखता है कि एग्जीक्यूशन उसके मुताबिक हो रही है, वो देखता है कि इसका स्टार्टअप और आगे कमीशनिंग जो है, जिसको आमतौर पे कमीशनिंग कहा जाता है, इसका स्टार्टअप जो है वो उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं। और फिर आखिर में स्टेज आ जाती है कि इसका हैंडिंग ओवर में जब इसके ऑपरेशन में जा रहा होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये चारों स्टेजेस है। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ, बहुत अच्छा मेंटेन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सका। अच्छा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, चले एग्जीक्यूट बहुत अच्छा हो गया, डिजाइन भी बहुत अच्छा हो गया, एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा हो गया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ गए। और सम टाइम होता है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की टीम अगर अच्छी होती है तो ना वो डिजाइन अच्छा हुआ होता है, ना वो उसकी इंस्टॉलेशन अच्छी होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और डेफिनेटली हमने ही देखना है कि इसको कैसे किस मौके पे इनको आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह किया जाए। ओवर टू यू। मेरा ख्याल में अब हम डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। काफ़ी लंबी बातचीत तो हो गई, लेकिन मकसद ये था कि ये टॉपिक जो डिज़र्व करता है एटलीस्ट हम उसको थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग बने। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, इस प्रेजेंटेशन का पार्ट है, एचटी की एक फ्री गाइडलाइन है इसके ऊपर, एक फ्री गाइड बुक है इंडोर एयर क्वालिटी के ऊपर, बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्रॉम डे वन वो फ्री है। तो और उसमें तमाम का स्टेजेस के अंदर हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं इंडोर एयर क्वालिटी को, उस गाइडलाइन में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। उसके बाद को फर्दर आप इसको स्टडी करना चाहें तो अदर देन हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए एचडी का स्टैंडर्ड 170 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडोर एयर क्वालिटी पे है, डेडिकेटेड फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी है। उसके अलावा आप स्टैंडर्ड 62.1 को आप देख सकते हैं, 62.2 भी है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए है। लेकिन जनरली हमारे यहाँ क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं या हम डील कर रहे होते हैं सेमी कमर्शियल में, तो उन चीज़ों को तो एशरे का एक रिच रिसोर्स मौजूद है। और जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि इस साल का जो प्रेजिडेंशियल थीम है वो भी हेल्दी बिल्डिंग्स पे है। तो हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन आंसर में इंशाल्लाह ताला हम इसको देखते हैं कि क्या वो लेमैन क्वेश्चन है। हम सब लेमैन ही हैं अभी। तो सर ये कि कंसीडरिंग द होल एनवायरनमेंट, जी, अगर हम सिटी की बात करें तो इंडोर एयर क्वालिटी ज़्यादा वर्स्ट है या आउटडोर एयर क्वालिटी ज़्यादा वर्स्ट? इसका सवाल करना, अमेरिका की एक स्टेट है, मैं भी नाम नहीं लूँगा उसका, तो आप खुद सर्च कर लें उसको भी। तो बल्कि एक चीज़ थोड़ी सी पहले से रिलेटेड, जो पहले मैंने आपको कहा कि एक सर्च आप उस पर करें, तो आप देखेंगे कि एक स्टेज ऐसी आती है 12 to 14% पे, 14% ऑफ द ऑक्सीजन जब लेवल पहुंचता है तो आप मूव नहीं कर सकते, एबिलिटी टू मूव आपकी डिस्टॉर्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग उससे पहले होती है। तो आप देखेंगे जब आप मूव ही नहीं कर पा रहे, हिल ही नहीं पा रहे कुछ करने के लिए। और मेरे साथ ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ है, हम एक जगह पर थे और वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी ये की या अक्लमंदी ये की कि उन्होंने वो जो बुखारी जिसको कहते हैं, तो उसकी आग थोड़ी सी एक्सटेंड कर ली, कोल था, अब वो बर्निंग प्रोसेस हो रहा था, वो सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर गया। अच्छा, एट दैट टाइम मुझे एक आदत थी कैंपिंग में होते हुए, तो वो कैंपिंग साइट के करीब ही था, लेकिन इत्तेफाक से कि मैं अपना जो बैग होता था उसको लेके चलता था और मैं बैग इन्वेलप कर लेता था अपने लिए। तो सिर्फ आप कह लें कि फॉर्चुनेटली मैं सर्वाइव कर सका, बाकी सब लोग हॉस्पिटलाइज हुए। और एबिलिटी टू मूव का हमने वहां पे देखा कि सिर्फ ऐसे ही एक फर्द इसी तरह उसका बेड था विंडो के साथ, और एबिलिटी टू मूव की इतनी डिस्टॉर्ट हुई, खत्म हुई कि वो विंडो ओपन नहीं कर पा रहा। इनसाइड द रूम, हाँ जी, इनसाइड द रूम, क्योंकि वो बर्निंग प्रोसेस है तो वो उसने सारी कंज्यूम कर लेनी है ऑक्सीजन, तो उसमें फिर वो, तो ये इतना क्रिटिकल है कि इसने शुरू से हमारे इस रीजन के अंदर बहुत सारी कैजुअलिटीज और बहुत सारी इस तरह के मामला रहे हैं। तो इस सब के बावजूद के पॉल्यूशन, स्मॉग और इसके बावजूद हमारी लाहौर की आउटडोर अभी भी इस काबिल है कि वो जो हमारी इंडोर एयर क्वालिटी में डिल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि डिल्यूट किया है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो डिल्यूट कर सकती है। आल दो वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाहौर की एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, लेकिन अमेरिकन सिटीज़ जो कुछ ऐसे हैं कि जिनमें आप बाहर से एयर लेते हैं तो जिन डक्ट से वो एयर आ रही होती है वो डक्ट्स येलो हो जाती है,
इतना ज़्यादा वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप के पास नेचुरल एयर है ना, वो एक नेचुरल सोर्स है। यहाँ पे आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर चुके हैं, तो आपके पास कौन सा ऐसा सोर्स है, चले मैं बाकी सब चीज़ों को साइड पे कर देता हूँ, आपके पास कौन सा ऐसा सोर्स है कि आप वो जो जिसके अंदर ऑक्सीजन डिप्लीट हो चुकी है, वो लेट से 15% पे जा चुकी है, तो अब आपके पास ऑक्सीजन का क्या सोर्स है? तो आप लेंगे ना, वहीं से रिप्लीट करेंगे। फिर जो लोग वाटर ट्रीटमेंट से वाबस्ता है वो एक इस मिसाल को बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे, जिन्होंने या बॉयलर का प्रोसेस समझो, ब्लीड ऑफ एक प्रोसेस होता है कि जिसको हम कहते हैं ब्लीड एयर। जब ये एयर खराब हो गई है, एयर में कन्वर्ट हो गई है, तो इसकी ब्लीडिंग तो करनी है ना, हमने इसको बाहर देना है, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस जो है वो फिर भी बेहतर हैं। और अगर जब एक हद से ज़्यादा हो जाए तो उसके फिर मुख्तलिफ मेथड्स हैं कि उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी ट्रीटमेंट कर ली जाती है, ट्रीटेड एयर के तौर पर उसको यूज़ कर लिया जाता है। लाइकवाइज एयर वॉशर्स कई जगह पे ऐड कर दिए जाते हैं, तो जो वहाँ पर कर्टन्स या नमदा जिसकी हम बात कर रहे थे, टेक्सटाइल में या मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी उस तरह की एयर जो है वो यूज़ की जाती है। कोई और सेकंड वन ये है कि जो हमारे आउटडोर यूनिट या एसी यूनिट हैं उनको भी अल्टीमेटली ये सीजन में इनको वॉश करना जरूरी है। एक इट डिपेंड्स कि उनका यूजेज क्या है, वो एक दफ़ा से ज़्यादा भी हो सकता है। इस जगह पे लगे हुए हैं। हाँ, उनका यूजेज कितना ज़्यादा है, किस जगह पे लगे हैं, ये भी। थर्ड वन मेरा ये था कि जिसमें आपका प्रोसेस बनेगा 62.1 62.2 तो वो उनको स्टडी करना हो तो वो किस तरह का हाँ, मैं अपने लिए अपने के लिए ऑफिस के लिए यूज होता है। मैंने आपको जो बताया कि इंडोर एयर क्वालिटी का जो एशरे का रिसोर्स है वो एब्सोल्युटली फ्री है। फिर इसके अलावा एशरे मेंबर्स के लिए वो ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो लॉगिन करें और वो उसको ऑनलाइन स्टडी कर लें। इसके आपकी पहले बात की तरफ आता हूँ मैं कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हमने 4 प्रॉन्च अप्रोच का जिक्र किया, उसमें नंबर 1 क्या था कि हम सोर्स को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले वो हमने हंसते हंसते बात तो हो गई कि कुत्ता निकालेंगे, सबसे पहले पानी नहीं निकालना, उसके बाद पानी निकालने वाला काम करेंगे, यानी कि वेंटिलेशन करेंगे हम, इसकी जो उसकी एडुकेट वेंटिलेशन है, ठीक है ना। देन फिर उसके साथ ये नहीं है कि ये पहले ये करेंगे, ये सारे काम इकट्ठे करने हैं आपके। फिर हम क्या करेंगे, एयर की प्योरिफिकेशन को देखेंगे, क्लीनलीनेस को चेक करेंगे। जनरली जो कि हमारे यहाँ सफेद एसी वगैरह नहीं कर पाते, आजकल एयर कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो तो एयर प्योरीफायर मार्केट में मिलना शुरू हो गए हैं, एयर प्योरीफायर्स वगैरह। और कोई DIY भी कर सकता है, डू इट योरसेल्फ में भी वो बनाया जा सकता है, वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें कोई आप नहीं बना सकते। और आखिरी बात ये है कि आप इस सारे को करते हुए आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नज़रअंदाज नहीं करना है। RH जिसको हम आजकल भुगत रहे हैं 90%। देखें एयर का टेम्परेचर, आप देखेंगे कि सम टाइम इस वक्त लाहौर में कोई बताएगा एवरेज टेम्परेचर क्या चल रहा है, आइडिया होगा किसी को? 29 भी जा रहा है, 30 भी जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले टेम्परेचर 29 था और RH लेवल 95% था, तो क्या हाल हो गया वो था। तो यही मामला है, वो जो एशरे का जो कंफर्ट जोन है, एक्चुअली जब आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा होगा। अच्छा, ये बहुत आम सी कॉमन सी चीज़ें हैं जिनको एक लेमैन भी प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब जब बच्चे इसके यूज टू हो जाते हैं तो वो कुछ नहीं करते, वो देखते हैं इस तरह की सूरत हाल है तो वो विंडो ओपन कर देते हैं, विंडो का पैन ओपन कर देते हैं। और बाहर जो है हमारे यहाँ आर्किटेक्चरल फीचर्स घर में इस तरह के रखे जा सकते हैं कि लाहौर की एक हिस्ट्री है, उसमें प्रीविलिंग विंड वेलोसिटी है, विंड डायरेक्शन है और विंड वेलोसिटी है, दोनों है। तो विंड रोज को आप स्टडी करके उसके लिहाज से अपने घर में ओपनिंग्स वगैरह या एयर की डायरेक्शन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जब आप इनको देखेंगे ना। एक इफेक्ट है स्पूनिंग। स्पूनिंग ये है कि आप में से कभी कुछ जाते हुए किसी ने लाजमी किया होगा ये काम, तो जा रहे हैं, मौसम खुशगवार है तो हाथ थोड़ा सा बाहर निकाल के या हल्का सा बाहर किया तो एयर अंदर आनी शुरू हो गई उसकी जगह, किया होगा ना किसी ने, जब मौसम खुशगवार होता है कि बाहर की एयर ज़्यादा अंदर आए, ये स्पूनिंग कहलाती है। हल्का सा ये हाथ बाहर निकाला, तो आप ये स्पूनिंग कर सकते हैं, जिस तरह वो स्पून से आप कोई चीज़ लेते हैं। ये स्पूनिंग इफेक्ट कुछ बिल्डिंग्स में अब लाहौर में भी देखने को मिल रहा है। कुछ बिल्डिंग्स ने इसको एस्थेटिक्स के लिए सिर्फ किया है, लेकिन कुछ ने इसको फंक्शनल किया है। इसको किया जा सकता है। मैंने अपने घर में जो स्काईलाइट लगाया है, स्काईलाइट को इस तरीके से किया है कि उसका एक तरफ से जहाँ पे प्रीवेलिंग विंड वेलोसिटी है वहाँ से उसको स्पिनिंग इफेक्ट दे दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1.5 फुट बढ़ा दिया इसको, वो एक स्पूनिंग इफेक्ट वहाँ से
बन रहा है कि उसमें, तो आप में से हर एक के घर में कोई या इस तरह की जगह पर कोई ना कोई इस तरह की जगह हो कि जिस पे आप कर सकते हैं, क्योंकि लाहौर में बहुत सारा टाइम ऐसा आता है कि जब आप नेचुरल एयर को एंजॉय कर सकते हैं, आपने देखा ही हो, और उसको करना चाहिए हर वक्त। एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में, इस तरह के इन्वायरमेंट में या मैन मेड इन्वायरमेंट में रहना मुनासिब नहीं है। कुछ अर्सा पहले स्प्रेड्स आए थे जिनमें ओजोनेटर लगे हुए थे, जी, तो O2 को O3 में कन्वर्ट कर देते थे, तो वो अगर बड़े पैमाने पे वो अगर AHU में इम्बेड कर दिया जाए या इसमें, तो वो कोई इफेक्ट नहीं देते। असल में एक सब देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक इफेक्टिव है। असल में हमारे यहाँ क्लेम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव है नहीं है, किस हद तक है, किस लिमिट तक है। मसलन बहुत सारे लोगों ने मार्केट में आयोनाइजर और इस तरह की दूसरी प्रोडक्ट्स का भी जिक्र किया है, तो इट डिपेंड्स कि वो कितना इफेक्टिव है, ट्रायल एंड टेस्टेड डेटा उसका देखना पड़ेगा कि उसमें तो इफेक्ट। आउटडोर प्लांटेशन बड़ी है, इंडोर प्लांटेशन से कुछ जी, मैं आपकी इसमें अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा, ये आप ही के सवाल से रिलेटेड भी है। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स ऐसे हैं जो इंडोर टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, वो आप अगर घर के अंदर रख दें, है ही वो इंडोर प्लांट्स हैं, तो VOCs और फॉर्मेल्डिहाइड्स को वो एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। लो कॉस्ट मेथड भी इसके अवेलेबल है, लेकिन नेचर से अगर आप करीब जाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट है पैसिव होम्स का, इसको स्टडी कर लीजिएगा। पैसिव होम में जो वो घर डिज़ाइन करते हैं, जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, वो उसकी इंस्पायरेशन नेचर से लेते हैं और फिर उस पे लो कॉस्ट घर जो है बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन। एग्जैक्टली बिल्कुल डालती है सनलाइट तो बहुत, क्योंकि सनलाइट में आपने यूवी का नाम तो सुना होगा, लेकिन यूवी लाइट के भी 3 बैंड्स हैं, UVA, B एंड C। जो सबसे ज्यादा लीथल है या जर्मेसाइडर के तौर पे काम करता है वो UVC है, और नेचुरल सनलाइट जो है एक रिचेस्ट, प्योरेस्ट और इजीएस्ट सोर्स है इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन करने का। आप देखें जिन लोगों के यहाँ बेड बग्स या सीलियन या इस तरह का चीज हो जाती है, कल परसों मुझे किसी बच्चे ने ये बात कही, बच्चे आजकल आपको पता है कि वो बड़े मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे होते हैं, और बच्चे ने बात की और मैंने उस बच्चे से सीखा, अब मुझे ये याद नहीं आ रहा किसने की, उसने कहा कि आजकल आपको पता है कि ये जो सूरज में तपिश बहुत ज़्यादा है, आप UV इंडेक्स जिसको आप कहते हैं बहुत हाई है, कहते हैं क्यों है, तो मैंने कहा यार बस इन दिनों मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बरसात में और अगले महीने जो है बहुत ज़्यादा है, और इसके हमारा लोकल विजडम जो कि मिनिमम 100 ईयर्स में डेवलप होता है, लोकल विजडम जिसको सियाने कहते हैं ना, सियानी बातें जो होती है, तो वो भी ये कहते हैं कि इस धूप से बचना चाहिए। मसलन पहाड़ी इलाकों में इन दिनों कहते हैं कि इस धूप में तो गधा भी खड़ा नहीं होता, आप उसको भी खड़ा कर देंगे तो वो भी खुश्क हो जाएगा। तो उस बच्चे ने मुझे कहा कि ये इसलिए ज़्यादा होती है कि बरसात में क्योंकि बारिश होती है, पूरी ज़मीन वेट होती है, तो ये रेडिएशन की इंटेंसिटी उसको वेपोरेट करती है। ये अब देखें, वो कहते हैं एक विजडम तो आप कोई भी हिकमत की बात तो कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी आपका उस्ताद हो सकता है, कोई आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आसान करके समझाने की, डिलीवर करने की ज़रूरत है, और सदका जारी है ये। RS को सर कैसे RS का मतलब क्योंकि बाहर का जो ह्यूमैनिटी है कोई ऑब्वियसली आसान जवाब दूं या डेटा ड्रिवन जवाब दूं? आसान ही दे दूं। चलें, आसान और डेटा ड्रिवन दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर देता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लाहौर में कितने दिन इतने ह्यूमिड होते हैं कि जहाँ पे गुजारा मुश्किल है? कभी किसी ने डेटा लॉग किया, ये ऑब्जर्व किया? मैक्सिमम ये नहीं, इतना नहीं, 2.4%। नहीं वो ज़्यादा बन जाएंगे। 2.4% आप कितने देख लो। अच्छा, मैं आपको उसका आसान बता देता हूँ। आसान तरीका ये है कि बरसात के 2.5 माह हैं हमारे, कितने हैं, कितने डेज बनते हैं ये? अच्छा, अब आप देखिएगा कि पिछले 4-5 दिन मौसम बड़ा अच्छा रहा था, यानी कि मुझे एक दिन याद है कि एक दिन ऐसा था कि पंखे भी चलाने नहीं पड़ रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि अब सर्दी का एहसास हो रहा है हल्का सा। अच्छा, अभी पूरे एक वीक में आज का दिन ऐसा आया है कि जिसमें शदीद हब्स था, ऐसे ही है। तो अब आप इसको देख लें कि ऑलमोस्ट ये जब बरसात शुरू हो रही होती है, मानसून आ रहा होता है, उस वक्त 3 या 4 दिन ऐसे बड़े सख्त आते हैं, फिर दरमियान में मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, वेदर थोड़ा सा, ये हमारी हिस्ट्री है। अगर हम इसको देखें तो वो जो दिन आते हैं ना, उनमें
मुश्किल है, उनमें आपको मैकेनिकल ही करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा लोकल विजडम ये कहता है कि हवा को चैनलाइज करें, घरों का साइज और घरों की कंस्ट्रक्शन इस लिहाज से करें जो कि अनफॉर्चुनेटली चेंज हो गई है। हम अब बॉक्सेस बनाते हैं, हम वो अब घर बनाने का कॉन्सेप्ट काम है। तो अगर चाहेंगे तो वो छोटे छोटे से अपर्चर्स बनाए जा सकते हैं। पैसिव होम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये अपर्चर्स हमसे ज़्यादा ह्यूमिड रीजन के अंदर काम कर रहे हैं, आप देखिए जो मलेशियन रीजन है, जो इंडोनेशिया के लोग हैं, जो थाईलैंड के लोग हैं, उनकी और जो वियतनाम के लोग हैं, उनकी स्किन का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है इस नमी से। इस हद तक नमी ज़्यादा होती है, उनके स्किन का जो पूरा का पूरा ऊपर फॉर्मेट चेंज हो जाता है, हर वक्त आपको लगता है ऑयली स्किन है उनकी। तो हवा जो है, एयर चेंज रेट जिसको कहते हैं, एक इसका आसान सा तरीका ये है। इसको मैंने आपको दोनों बातें मिक्स कर दी कि लाहौर में कितने दिन हैं, 2 ऑप्शन है। उन दिनों में तो आपको डेफिनेटली एयर कंडीशनर के बगैर कोई हल नहीं है। प्रॉपरली साइज एयर कंडीशनर होगा तो आपके अंदर इंटरनल वो होगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप एयर की क्वांटम, उसके अपर्चर्स वगैरह जो है वो बढ़ाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर उसका भी एडवर्स। कोई और बात? एयर चेंज पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसका बेस्ट वे क्या है एयर चेंज करने का? या इसका बेस्ट पे क्या है, ये तो रिसर्च वैल्यूज़ हैं, टेबल्स मौजूद हैं, एशरे के टेबल्स मौजूद हैं और वो इंटरनेट पे बड़े आम अवेलेबल हैं। मसलन मिनिमम जनरली 6 एयर चेंजेस के ऊपर से स्टार्ट होते हैं। फिर उसमें वो रेशो है कि अगर आप रीसर्कुलेशन कर रहे हैं तो रीसर्कुलेशन इतनी होगी और साथ फ्रेश एयर के इतनी बार इस कमरे से एयर चेंज हो जाए। तो जो मेरे उसमें अभी तक मुझे याद है, और इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, फारूक साहब भी मौजूद है, बाकी लोग भी, अदनान साहब भी, कि मिनिमम 2 एयर चेंज जो है वो फ्रेश एयर की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके होने चाहिए 1 घंटे में। पुराना सिस्टम हमारा जैसे का वो बंद हो गया, नहीं, वो उसके साथ उसी से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें उसके इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बंद नहीं होगा। वो वहाँ से उतना परसेंट ले रहा होगा वहाँ पे। अब ये देखें ना, फर्ज किया कि वो लेट से हम चले नंबर्स में बात कर लेते हैं, बाहर से 200 CFM आ रहे हैं स्पेस में, क्या होगा? अब मुसलसल आते जा रहे हैं और बाकी रिसर्कुलेट हो रहे हैं, तो क्या होगा? 200 CFM का पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और वो पॉजिटिव प्रेशर कहाँ से निकलेगा? उसके 2 ही तरीके हैं। या तो आप रिलीफ के लिए उसके यहाँ पे कोई ग्रेविटी डैम्पर्स वगैरह लगा दें ऊपर, तो वो खुद ब खुद सीलिंग से ऊपर होते वो एयर रिलीफ हो जाएगी एनवायरनमेंट में। या फिर ये होगा कि जो क्रैक्स हैं यहाँ पर, इन क्रैक्स के जरिए से कुछ एयर उधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, इस तरीके से वो एयर चली जी। एक्सचेंज कर रहे हैं, वो तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी। एनर्जी रिकवरी वेंटिलेटर है, उसको आप प्रॉपर्ली अगर साइज कर लेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। वो एक आइडियल तरीका है। तो जी जी एक ड्राई मोड भी होता है,